Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahindarganj, Rajpura. Students, in today's lecture, we are going to continue our chapter 8, Human Health and Diseases. In our previous lectures, we have studied bacterial diseases like typhoid and pneumonia, then viral disease, common cold, fungal disease, रिंगवॉर्म एंड वन प्रोटोजोन डिजीज एमेबॉयसिस। ये वाले डिजीजेस हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए। क्या सिम्टम्स हैं इनके, कौन से ऑर्गन्स इन्फेक्टेड होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, वी हैव डन इट इन डिटेल। Now in today's lecture we are going to continue one more protozoan disease, that is malaria. बेटे बहुत कॉमन डिजीज़ है, आपने नाम सुना होगा मलेरिया। मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है, यही हम सब लोगों को पता है। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आपको ये पता होना चाहिए कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर के अंदर है पैथोजन। सो मॉस्किटो इज ए वेक्टर, और वो पैथोजन कौन सा है? वो एक प्रोटोजोन है, एंड नेम ऑफ द प्रोटोजोन इज प्लाज्मोडियम। इसके आप स्पीसीज भी लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है मोस्ट कॉमन जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। और इनमें से सबसे जो डेंजरस है मलेरिया वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्योंकि ये वाला जो प्रोटोजोन है ये ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सो इन आवर lecture we will mostly focus on this protozoan Plasmodium vivax that cause malaria. So vector is required and name of the vector is female Anopheles mosquito, जिसके अंदर ये प्रोटोजोन डेवलप होता है। आप देख रहे हो मॉस्किटो की बाइट से ये प्रोटोजोन ब्लड में एंटर होता है। अब हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। बेटे बुक में जो हमारे डायग्राम दिया हुआ है, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये डायग्राम हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर वी डिस्कस दैट डायग्राम, लेट्स सी दिस वीडियो that will make everything. Plasmodium completes its life cycle in 2 phases and in 2 hosts. Sexual cycle in female Anopheles mosquito and asexual cycle in humans. Let us understand the life cycle of Plasmodium. When a female Anopheles mosquito bites a person to obtain a blood meal, it injects saliva mixed with an anticoagulant. If an infected female Anopheles mosquito bites a person, it injects the sporozoites of Plasmodium into that person. You see that on your screen. Plasmodium sporozoites enter the bloodstream of that person and travel to the liver cells. Now what happens inside the liver cells? Inside the liver cells, they divide repeatedly and new spores called merozoites are formed. These merozoites emerge and release into the red blood cells by rupturing the liver cells, as you can see on your screen. In the red blood cells, they undergo asexual reproduction. After that, they rupture the red blood cells and release toxins which produce shivering and fever. Now, some merozoites in the blood develop into special cells called gametocytes, or the sexual stage of Plasmodium. Red blood cells containing gametocytes do not rupture. So what will happen? These gametocytes are then taken up by the female Anopheles mosquito along with the blood when it bites an infected person. In the intestine of a mosquito, the gametocytes differentiate and sperms and the egg cells combine to form a zygote. The zygote divides repeatedly to form more sporozoites. Then these sporozoites migrate to the salivary gland of the mosquito. When the mosquito bites another person, the life cycle begins again. So बेटे क्लियर हुआ आपको? चलो अब हम डायग्राम डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक में डायग्राम है। This is the diagram that is given in our book. So अब मैं इसको जूम करती हूँ बेटे, ठीक है। We will explain it step by step. यहाँ पे क्या हुआ, मॉस्किटो ने बाइट किया, ह्यूमन हैंड पे बाइट किया, तो हमने वीडियो में देखा उसने कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज जो इंजेक्ट की,
name of that stage in the life cycle of plasmodium? These are sporozoites. जब sporozoites blood के अंदर enter कर गए, उसके बाद they will go to the liver cells. liver cells में जाएंगे sporozoites. लीवर के सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं. हेपेटोसाइट्स में जाएंगे, हेपेटोसाइट्स में मल्टीप्लाई होएंगे और वो हेपेटोसाइट में इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी कि वो हेपेटोसाइट सेल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे और सारे के सारे जो स्पोरोजोइट्स हैं दे विल बी रिलीज्ड. नाउ दीज स्पोरोजोइट्स दे आर कॉल्ड मीरोजोइट्स. आपको नाम याद रखना है कि इन द लीवर दे गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मीरोजोइट्स. मीरोजोइट्स आरबीसी में एंटर कर जाएंगे. आरबीसी में एंटर करेंगे, आरबीसी में फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, वो मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को. मल्टीप्लाई करके आरबीसी के सेल्स भी इतने ज़्यादा फुल हो जाएंगे मीरोजोइट्स से कि वो बर्स्ट हो जाएंगे. आरबीसी के सेल बर्स्ट हो जाएंगे. जैसे ही आरबीसी के सेल्स बर्स्ट होंगे उस टाइम पे उस पर्सन को फीवर आता है. दैट मीन्स अब उसकी इन्फेक्शियस स्टेज है वो क्लियर हो गई, क्योंकि जब वो बर्स्ट करता है आरबीसी तो उसमें से कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं. उस टॉक्सिन से फीवर आता है, शिवरिंग होती है, ठीक है, उससे ठंड लगने लगती है. दैट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. लेकिन कुछ जो मीरोजोइट्स हैं वो अपने आप को गेमिटोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. क्लियर? तो अब जब मॉस्किटो अगेन उस पर्सन को बाइट करेगा तो वो ब्लड के साथ इन गेमिटोसाइट्स को भी इंजेस्ट कर लेगा. गेमिटोसाइट को जब इंजेस्ट कर लेगा तो मॉस्किटो की बॉडी में गेमीट्स बन जाएंगे. गेमिटोसाइट दे विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. वहां पे फ्यूजन होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होगी. तो जो जाइगोट बनेगा उसकी फिर हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट जो है उसमें फिर क्या होगी, डिप्लॉयड होएगा, उसमें फिर मेयोसिस होगी और हैप्लॉयड स्पोरोजोइट्स बनेंगे. हैप्लॉयड स्पोरोजोइट्स बनेंगे, फिर क्या होगा, वो फिर मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे. स्टमक में होता है ना ब्लड, स्टमक में जब उसने ब्लड को बाइट किया था हैविंग गेमिटोसाइट, वहां पे क्या हुआ, उसके बाद वो उसकी सलेवरी ग्लैंड्स में, मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड्स में ट्रांसफर हो गए. और फिर उसके बाद वो फिर सलेवरी ग्लैंड से जब वो मॉस्किटो फिर बाइट करेगा किसी और पर्सन को तो वो स्पोरोजोइट्स फिर हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट हो जाएंगे और मलेरियल पैरासाइट का जो साइकिल है फिर कंटिन्यू हो जाएगा. क्लियर बेटे? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन सी द वीडियो अगेन एंड देन ड्रॉ दिस डायग्राम. एग्जाम में कई बार डायग्राम भी आ जाता है, ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट. तो आपको ये ड्रॉ भी करना है, लेबलिंग भी करनी है, ठीक है. ओके, नाउ ऑर्गन्स इफेक्टेड इन मलेरिया. अब आप समझ गए होंगे कि दो ऑर्गन्स हैं मेनली जिसपे मलेरियल पैरासाइट इफेक्ट करता है. एक तो है आरबीसी को बर्स्ट करता है और दूसरा वो क्या करता है, लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है. लिवर सेल्स को एंड आरबीसी को, दोनों मोस्टली दीज सेल्स आर इफेक्टेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट. सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स दो तो हमने कर ही लिए कि शिवरिंग होएगी, फीवर होएगा, इसके अलावा हेडेक भी हो सकती है, ठीक है. शिवरिंग है, फीवर है और उसमें हेडेक हो सकती है. और कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं, समटाइम्स वॉमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया भी हो सकता है, घबराहट हो सकती है. अब जब ब्लड की कमी होएगी तो बॉडी एक होएगी, बैक एक होएगी, ठीक है. कई बार जो ज्यादा इन्फेक्शन हो गया इसकी तो अनकॉन्शियस भी हो सकता है. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी में कोई सिम्टम ज्यादा है, किसी में कोई सिम्टम नहीं शो हो सकता. प्रिवेंटिंग मलेरिया, मलेरिया को प्रिवेंट कैसे करें? ABCD आप याद रख लो, ABCD. A इज अवेयरनेस. आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अपने आसपास मॉस्किटो को इकट्ठे नहीं होना चाहिए. मॉस्किटो पानी में ज्यादा आते हैं, स्टैंडिंग वाटर में, तो उस जो आसपास गंदा पानी है वो खड़े नहीं होना देना चाहिए, ठीक है. B बाइट प्रिवेंशन, कि मॉस्किटो बाइट ही ना करे हमें, उसके लिए हमें एंटी रिपेलेंट क्रीम का यूज करना चाहिए. जो मॉस्किटो नेट है वो लगाने चाहिए रात को, ठीक है. C इज कीमोफाइलैक्सिस. मेडिसिन्स,
जो अगर हमें सपोज कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो लेनी पड़ती हैं, अगर हमें इन्फेक्शन हो गई है, डायग्नोसिस हो गया है, तो फिर हमें डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन से इसकी जो एंटी मलेरियल मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है. सो ऑल दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट मलेरिया. एलिफेंटियासिस. नाउ आवर नेक्स्ट डिजीज इज एलिफेंटियासिस. सेकंड नेम इज फाइलेरियासिस. किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है. मैं आपको बताऊंगी कि इसको एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं. सो सबसे पहले तो कॉजेटिव एजेंट इज वुचीरिया बेनक्रोफ्टाई. इट इज ए फाइलेरियल पैरासाइट. फाइलेरिया से हम इसको क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस. दूसरा भी इसकी एक स्पीशीज है ब्रूगिया मलाई, ये भी एलिफेंटियासिस कर सकता है. ये यू कैन सी दीज आर द लार्वी ऑफ दिस पैरासिटिक वॉर्म. क्लियर. चलो देखते हैं अब ये कैसे, इसकी इन्फेक्शन कैसे होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है. ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्शियस मॉस्किटो. मलेरिया की तरह ये भी मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर काटने से होता है. जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मीन्स कि जिस मॉस्किटो के अंदर ये पैरासिटिक वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म है, उसने अगर हेल्दी किसी पर्सन को बाइट कर लिया, उसको काट लिया, तो वो उसके अंदर माइक्रो फाइलेरियाई जो वॉर्म्स है वो इंजेक्ट कर देगा. जैसे मलेरिया में इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन था वो इंजेक्ट कर दिया था, फाइलेरियासिस में माइक्रोफाइलेरियाई में वो इंजेक्ट कर देगा और वो हमारे लिम्फेटिक्स में लिम्फ सिस्टम को अटैक करते हैं, लिम्फ नोड्स को. वहां पे कितने सालों तक ये माइक्रोफाइलेरियाई हैं वो रह सकते हैं. ठीक है. और फिर अडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो. अब मॉस्किटो बाइट से सपोज ये इस इन्फेक्शियस मॉस्किटो के अंदर ये वो थे, फाइलेरियल वॉर्म्स थे, वो इंजेक्ट हो गए. अब अगर इंजेक्ट हो गए तो हम देखते हैं, तो हम पहले इसकी प्रिवेंशन कर लेते हैं कि हमें ये काटे ही ना मॉस्किटो. तो मॉस्किटो है तो हम नेट लगा सकते हैं, एंटी रिपेलेंट स्प्रे का यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर कोई डाउट है कि हमें मॉस्किटो ने काट लिया, अब ये इस डिजीज का हमें कोई सिम्टम लग रहा है, तो हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए. ऑर्गन क्या इन्फेक्ट होते हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. आप ये देख रहे हो कि लेग्स कितनी सूलन है, सूजी हुई लेग्स लग रही हैं. ठीक है. इसके पैर भी कितने सूजे हुए हैं. सो मोस्टली जो लोअर लिम्स होती हैं वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है. अब एलिफेंटियासिस इसीलिए बोलते हैं कि जो लेग्स हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे स्मॉल एलिफेंट की लेग्स होती हैं, इतनी स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है. अब इसमें जो क्या है, स्क्रॉटम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था, उस पर भी स्वेलिंग हो सकती है. इन केस ऑफ फीमेल्स ब्रेस्ट पे स्वेलिंग आ सकती है. हैंड्स है जो, जैसे ये लेग्स में स्वेलिंग है उसी तरह हैंड्स में भी स्वेलिंग हो सकती है. सो दीज आर द क्लियर सिम्टम्स ऑफ एलिफेंटियासिस. यहाँ पे लिम्फ जो है वो इकट्ठा हो गया. लिम्फ के अंदर क्या ग्रो कर रहे हैं, फाइलेरियल वॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं. और जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू द एज ऑफ 13-14 ईयर्स, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इस डिजीज के. नेक्स्ट डिजीज इज राउंड वॉर्म डिजीज. अस्कैरिस है उसका नाम, अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस. इट इज ए हेलमिंथिसिस डिजीज, राउंड वॉर्म डिजीज. और बेटे एक बात आपको याद रखनी है, ये वाला जो अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस है, अस्कैरियासिस डिजीज को करता है, तो ये वहां पे होता है, यहाँ पे पुअर सैनिटेशन कंडीशंस है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है. और खास करके जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन फीसिस है, वो मिक्स हो रही है सॉइल के साथ, वाटर के साथ. और कुछ कंट्रीज में बेटे क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, कि ह्यूमन फीसिस जो ह्यूमन वेस्ट है उसको एज ए फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है. तो वहां पे तो इस इन्फेक्शन के बहुत चांसेस हैं. अब ह्यूमन फीसिस से क्या इसका संबंध है वो हम देखते हैं बेटे. सबसे पहले देखो आप, ऑर्गन इन्फेक्टेड एस्कैरियासिस, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो राउंड वॉर्म है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करता है. आप ये देख रहे हो कितना बड़ा वॉर्म है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहा है. माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो आप इसकी राउंड वॉर्म की. दिस इज अस्कैरिस, अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस. हम जो भी खाना खाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारा फूड होगा डाइजेस्टेड, वो सारा फूड ये खाएगा. और अगर ये सारा फूड खाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पेशेंट है अब उसको फूड नहीं मिलेगा, वो वीक होना शुरू हो जाएगा, उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी.
ठीक है, आपने सुना होगा छोटे बच्चों में पेट के कीड़े जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन कॉमन लैंग्वेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब आपको ये डायग्राम तो अच्छी तरह से आ गया होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम? यस, 4F डायग्राम, ओरल फीकल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ह्यूमन फीसिस अगर ओपन में टॉयलेट की जाती है तो टॉयलेट में जो इन्फेक्टेड पर्सन की टॉयलेट है उसमें इसके एग्स हैं वो बाहर आते हैं बेटे, और वो एग्स हैं जो वो सॉइल में भी मिक्स हो सकते हैं, वाटर में भी मिक्स हो सकते हैं। अगर हैंड्स प्रॉपरली वॉश नहीं किए तो वो एग्स हैंड्स पे लग सकते हैं। उसी हैंड से हमने प्रॉपरली वॉश किए हुए जो हैंड्स नहीं है खाना खाया, एग्स अगेन मुंह से अंदर चले गए। फ्लाइज बैठी हुई थी, वो फूड के ऊपर बैठ गई, देन अगेन इन्फेक्शन हो गई। सॉइल में मिक्स हुए हैं इसके एग्स एस्कैरिस के, और वो हमने फ्रूट या वेजिटेबल्स विदाउट वॉशिंग खा लिए, एंटर कर गए मुंह में। फ्रेश वाटर में इसके एग्स जो है मिक्स हो गए, हमने वो पानी पिया, एंटर कर गए। सो इसका जो ओरल फीकल रूट है कि डायरेक्टली क्या है, अगर आपके मुंह के साथ ये इन्फेक्शन अंदर जा सकती है अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई तो। सिम्टम्स, क्योंकि पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है, हमारा फूड खा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उनको भी खाएगा, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। और कई बार बेटे एस्कैरिस की इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है कि कई बार ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर स्टमक में भी आके हमारे वॉमिटिंग के साथ भी बाहर निकलते हैं। कई केसेस ऐसे भी हैं कि थ्रू माउथ वॉमिटिंग से वॉर्म्स आ रहे हैं बाहर, इन सीवियर केसेस। ओके, प्रिवेंशन कैसे करें? अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अगर हमें स्कैरियासिस से बचना है तो हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है जो उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, ओपन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हैंड वॉश प्रॉपर करने चाहिए। आफ्टर टॉयलेट हैंड वॉश अच्छी तरह करो, पानी को बॉयल करके पियो। अगर लगता है कि किसी एरिया का पानी साफ नहीं है तो हमें बॉयल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वॉश करके खानी चाहिए। और अगर इन्फेक्शन है तो कोई सिम्टम हमें नज़र आ रहा है तो हमें जो है डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन से बेटे मुझे याद आया, हमें एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स दी जाती हैं 6 to 12 सारे बच्चों को, इनफैक्ट फ्रॉम 1st to 12th क्लास के बच्चों को वो एल्बेंडाजोल टैबलेट्स हैं। वो क्या है, इन्हीं की एक टाइप की ट्रीटमेंट है कि छोटे बच्चों ने कभी हाथ साफ नहीं किए है ना, मिड डे मील खा लिया, तो ये जो टैबलेट्स हैं उनको इस डिजीज से जो है प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड कैटेगरी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड फर्स्ट इज कैंसर। आपने नाम सुना होगा बेटे कैंसर। ठीक है, आजकल बहुत फैल रहा है कैंसर। देयर आर सो मेनी रीजंस, वी विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ कैंसर। इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। ठीक है, अब कैंसर होता क्या है? हमने सेल डिवीजन पढ़ी थी कि 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2, 2 into 4, इस तरह से सेल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और जितनी ग्रोथ होती है डीएनए उतनी ही कमांड भेजता है। उसके बाद डीएनए जो है रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप के सिग्नल भेज देता है। डीएनए के पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। लेकिन सपोज अगर वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो वो समहाउ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो कंट्रोल ही ना कर पाए और सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करी जा रहे हैं, तो वहां पे तो सेल्स का क्या है, गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि वहां पे ट्यूमर बन गया। अब ये जो ट्यूमर बना है, मोड ऑफ ग्रोथ है जो सेल्स की, वो ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दिस इज बेनाइन ट्यूमर। ओके, अब बेनाइन ट्यूमर में क्या होगा, सेल्स तो डिवाइड कर रहे हैं बट दे विल डिवाइड एंड रीडिवाइड अप टू ए सर्टेन लिमिट। उनके अराउंड एक कैप्सूल जैसी लेयर होती है, इस लेयर को वो ब्रेक नहीं कर सकते, इसी के अंदर ही कन्फाइंड रहते हैं। तो कन्फाइंड रहते हैं तो दे आर समहाउ जो दे आर नॉट सो हार्मफुल,
benign tumor, they are harmless up to a certain limit. लेकिन जो हमारे दूसरे टाइप के ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, आप देखो उनके अराउंड जो वॉल नहीं है, वो इतने ग्रो कर गए कि वॉल ब्रेक हो गई। अब वो सेल्स हैं सारी डायरेक्शंस में, फिर क्या करेंगे, सारी डायरेक्शंस में फैल जाएंगे। सो मैलिग्नेंट मीन्स फैल जाना। मेटास्टेसिस है, ठीक है, मेटास्टेसिस मीन्स कि मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल, स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल्स। जितने भी हेल्दी सेल्स हैं उनके ऊपर भी ये जो सेल्स हैं फैलते रहेंगे, उनका फूड, उनकी न्यूट्रिशन उन सेल्स से छीनते रहेंगे। वो जो हेल्दी सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, और कैंसर सेल्स हैं उनका तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ही नहीं, वो फैलना शुरू कर देंगे, पूरी की पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को वो खराब कर देंगे। क्लियर? सो दीज आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड द प्रोसेस थ्रू विच दे स्प्रेड, इट्स कॉल्ड मेटास्टेसिस। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है। जब टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में, एक कैंसर सेल देख रहे हैं, एक नॉर्मल सेल देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि नॉर्मल सेल्स हैं जो, उनका साइटोप्लाज्म ज्यादा है, उनमें फूड ज्यादा है, ठीक है, लार्ज साइटोप्लाज्म, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोलस है, एंड फाइन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन भी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। लेकिन अगर कैंसर सेल को हम देखें तो देखो आप, इरेगुलर शेप लग रही है उसकी, कोई शेप नहीं है, मल्टीपल न्यूक्लियाई है, उनमें माइटोटिक डिवीजन हो गया क्योंकि कंट्रोल तो कोई है ही नहीं है। लार्ज न्यूक्लियोलाई भी बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोलस एंड प्लूरलिस न्यूक्लियोआई। कोर्स क्रोमैटिन, क्रोमैटिन की शेप भी वो क्या है, चेंज हो गई है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। ये क्वेश्चन भी बेटे आ सकता है एग्जाम में। अब कैंसर डायग्नोसिस, कैसे पता चले कि कैंसर है। बेटे कैंसर के जब सिम्टम्स आते हैं तो ही इसका डायग्नोसिस किया जाता है, अदरवाइज इसका एक्सीडेंटल डायग्नोसिस ही होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसने सारी ट्रीटमेंट ले ली, तो फिर उसका जो है अल्टीमेटली कैंसर टेस्ट ही करना पड़ता है कि क्या कहीं यही ना प्रॉब्लम हो, सेल्स ग्रो कर रहे हैं, बॉडी के दूसरे सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। तो कौन कौन से अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये क्योरेबल भी होता है बेटे। बायोप्सी मीन्स वही मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई, कोई सेल का पोर्शन अंदर से लेके उसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कि नॉर्मल है कि कैंसर है। बोन मैरो टेस्ट, ब्लड सेल्स लेके उसका टेस्ट करेंगे। रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेप टेस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर के लिए होता है। तो ये टेस्ट आपको याद रखने हैं कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बेटे सर्जरी है कि जो सपोज बेनाइन ट्यूमर ही है, अभी वो फैला नहीं है, तो उसको निकाल दो सर्जरी से। रेडिएशन थेरेपी दे दो कि अगर वो मैलिग्नेंट हो रहा है तो उसमें रेडिएशंस डाल के टेक्निक होती है, उन सेल्स को किल कर दो, कैंसर सेल्स को, ताकि वो आगे स्प्रेड ना हुए। कीमोथेरेपी, केमिकल्स कुछ ऐसे दिए जाते हैं जिससे वो कैंसर सेल्स हैं जो फैल रहे हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस भी एक ट्रीटमेंट है। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो नेबरिंग सेल्स को सेव करके रखती हैं इन्फेक्शन से, तो इंटरफेरेंट ट्रीटमेंट्स भी दी जाती हैं। सो ऑल दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ cancer. So this is all about our today's lecture. We will continue other disease in the next lecture.